Hello dear students, we were doing chapter number 1 more about plants, and in this chapter we have discussed about seed dispersal in our last class. That seed dispersal is the process by which जो seeds हैं they are scattered away from their parent plant, and we have also discussed about different agents of dispersal. We have discussed about dispersal by wind, water, and for today we have to start by dispersal by animals. So let's start. After eating lychee, peach, papaya, orange, and other fruits, we throw away their seeds. When these seeds fall on the ground, they germinate. In this way, we help in their dispersal. So, जब भी कोई एनिमल और ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग हम जब भी कोई फ्रूट खाते हैं सो वी यूज़ टू थ्रो देयर सीड्स, हम उनके सीड्स को थ्रो कर देते हैं. और जब भी ये सीड्स जो हैं ये रीच करती हैं या फॉल करती हैं ऑन द ग्राउंड सरफेस, सॉइल सरफेस, आफ्टर गेटिंग प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस ये जर्मिनेट हो जाती हैं. प्रॉपर जब फेवरेबल कंडीशंस मीन्स प्रॉपर एयर, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वार्मथ. तो आफ्टर दैट दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग. इस वे से जो एनिमल्स हैं दे हेल्प इन द dispersal of seed. And when birds and animals eat fruits, the seeds are not digested but come out as droppings. These seeds germinate away from parent plant. So when birds and animals eat fruit, जब birds और animals भी fruit को खाते हैं, so their seeds are not digested by them. उनके जो seeds होते हैं they are not able to digest them. उनको वो digest नहीं कर पाते. So these seeds come out from their body as droppings. Dropping means their waste product. जब उनका waste product excrete होता है तो ये जो seeds होती हैं which are not digested by them ये बाहर आ जाती हैं from their body. So these seeds germinate away from parent plant. So in this way ये जो seeds हैं ये parent plant से दूर germinate हो जाती हैं. Next is some seeds such as those of Xanthium cocklebur have hooks or spines. They stick to our clothes or to the fur of animals, then get dispersed to distant places. So कुछ सीड्स होती हैं लाइक जेंथियम की सीड्स होती हैं. दिस इज जेंथियम, यू कैन सी द जेंथियम प्लांट ऑल्सो नोन एज कोकलबर. इनके जो प्लांट्स हैं यू कैन सी इसका जो जेंथियम के जो सीड्स हैं इनमें छोटे छोटे स्पाइन्स हैं लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये स्टिक हो जाते हैं हमारे क्लोथ से और द फर ऑफ एनिमल से. एंड इन दिस वे जहाँ जहाँ हम जाएंगे और एनिमल्स जाएंगे वहाँ वहाँ ये जो हैं जेंथियम के जो सीड्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं हमारे क्लोथ से या एनिमल के फर से. सो वहाँ पे ये ग्रो कर जाएंगे व्हेन दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड. सो देन दे गेट डिस्पर्स्ड फ्रॉम टू डिस्टेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस, दूर दूर के प्लेसेस में ये. एंड सच काइंड्स ऑफ सीड्स जो ऐसे क्लोथ्स के साथ अटैच हो जाते हैं और एनिमल फर के साथ अटैच हो जाते हैं दे आर नोन एज बर्ड्स. एंड सीड्स लाइक गुआवा सीड्स होते हैं या कुकुम्बर के सीड्स होते हैं दे आर डिस्पर्स्ड बाय इंजेशन बाय एनिमल्स, थ्रू इंजेशन बाय एनिमल्स. क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं दे कैन नॉट डाइजेस्ट द सीड्स ऑफ गुआवा और व्हाट वी कॉल इट एज कुकुम्बर. सो with the help of their excreta ये जो seeds हैं they come out from their body and such kind of dispersal is known as endozoochory. Next is dispersal by explosion. The fruits of pea, geranium, gorspod, poppy and balsam burst open when they ripen. The seeds pop out and get scattered. So seeds or pods of geranium, gorspod, poppy जो हैं इनके जो fruits होते हैं या pods होते हैं जब ये ripen हो जाते हैं, fully grown हो जाते हैं तो ये dry होके खुद ही rupture हो जाते हैं, burst हो जाते हैं जिसकी वजह से एक pressure के साथ इनके जो seeds है they come out and get scattered. Next is practice zone. First is fill in the blanks. So the baby plant between the cotyledons is called the dash. So baby plant जो है in that was including baby shoot and baby root and इन दोनों को combine करके we call it as embryo. Next is dash is an important factor that determines how a seed is dispersed. So the size of seed is very important factor जिससे हमें पता चलता है कि किस वे से whether through wind, water किस वे से जो है
सीड है वो डिस्पर्स होगा. सो द आंसर इज सीड साइज. नेक्स्ट इज सीड्स ऑफ डैश हैव विंग्स दैट स्पिन थ्रू द एयर लाइक mini helicopter. So in our last class we have discussed that the seeds of maple have wings जो spin करते हैं through the air like mini helicopters की तरह. So the answer is maple. Next is dash has air trapped between its fibers. So ये भी हमने last class में जब हम डिस्पर्स्ड बाय वाटर कर रहे थे, सी डिस्पर्सल बाय वाटर कर रहे थे. सो वी हैव डिस्कस कि जो कोकोनट्स होते हैं उनके जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में एयर ट्रैप होती है जिसकी वजह से उनका लाइट वेट होता है एंड इजिली फ्लोट कर जाते हैं वाटर के साथ. सो द आंसर इज कोकोनट. नेक्स्ट इज सीड्स दैट गेट अटैच टू आवर क्लोथ्स और टू द फर ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड डैश. सो द आंसर इज बर्ड्स. अभी हमने डिस्कस किया कि सच काइंड ऑफ सीड्स जो ऐसे क्लोथ्स या एनिमल्स के फर के साथ अटैच हो जाते हैं, दे आर नोन एज बर्ड्स. Next is reproduction through body parts. So we have discussed reproduction through seeds. Now we will discuss reproduction through the different body parts of the plant. So बहुत सारे plants होते हैं जो reproduce करते हैं from stem, leaves or roots. So activity 3. This activity show that some plants reproduce through stem. So यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रू दिस एक्टिविटी वी विल गेट टू नो कि जो स्टेम है वो भी हेल्प करती है रिप्रोडक्शन में कुछ प्लांट्स के केसेस में. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो. सो इस एक्टिविटी में वी आर टेकिंग पोटैटो एंड अदर देन दैट वी नीड कॉटन वूल एंड वाटर. सो वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक सम मॉइस्ट कॉटन वूल, जैसा हमने किडनी बीन्स के लिए किया था उसको जर्मिनेट करने के लिए. सिमिलरली वी हैव टू डू दैट विद द पोटैटो ऑल्सो. सो हम क्या करेंगे, मॉइस्ट कॉटन वूल लेंगे, उसको रैप कर देंगे पोटैटो को. देन उस कॉटन वूल जो मॉइस्ट है उसको कुछ टाइम के लिए, कुछ डेज के लिए वी विल कीप इन अ वार्म प्लेस and we will absorb कि some birds are appearing on some parts of the potato. की पोटैटो को किसी किसी पार्ट्स में कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं. अगर हम इस पोटैटो को फॉर मोर डेज वहाँ पे ही रखेंगे, उस वार्म प्लेस में ही रखेंगे, तो वी विल ऑल्सो नोटिस कि लेटर वहाँ जो बर्ड्स थे वहाँ से कुछ लीव्स हैं वो भी ग्रो कर रही हैं. नोट नाउ इफ़ यू प्लेस द पोटैटो, इन केस अगर हम इस पोटैटो को अगर हम अभी रेफ्रिजरेटर में प्लेस कर देंगे तो वी विल ऑब्जर्व कि जो लीव्स की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो चुकी है. दिस इज़ हाउ. एंड जो पोटैटो है इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. सो इसलिए हम इसको स्टेम में, इन केस ऑफ स्टेम जो है हम इसको पढ़ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम. न्यू प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन विद फ्रॉम स्टेम्स. कटिंग्स ऑफ stems are taken from parent plants that have buds on them. New plants grow from these buds. फिर न्यू प्लांट्स जो हैं वो स्टेम से भी ग्रो होती हैं. तो हम क्या करते हैं, कुछ कटिंग्स ले लेते हैं कुछ पेरेंट प्लांट्स की जिनके ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट हो, नॉड लाइक स्ट्रक्चर हो. फिर न्यू प्लांट्स जो हैं ये इन बर्ड से, जो इनमें नोड्स होती हैं, यहाँ से ग्रो कर जाती हैं. प्लांट्स लाइक रोज, बोगनविलिया, हिबिस्कस, शुगर केन जो है इस वे में इनकी कटिंग्स को हम लेके इनको ग्रो करते हैं. इन अदर वे ये जो बर्ड्स हैं हम इनको इनकी आइज भी बोलते हैं. सो यू कैन सी हियर द स्टेम इज कट. दिस इज इन केस ऑफ, आई थिंक दिस इज रोज प्लांट. सो यहाँ पे क्या है, स्टेम कट करके उसको प्लांट कर रहे हैं और आफ्टर सम डेज जो न्यू प्लांट है वहाँ पे वो ग्रो कर जाएगा. नेक्स्ट इज ओके, पोटैटो इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम. सो पोटैटो है ये मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड स्टेम की, जिसमें क्या है, दैट हैज़ बर्ड्स नोन एज आइज. जो इसकी बर्ड्स हैं इनको आइज बोलते हैं. ये जो आइज हैं या दिस बर्ड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. ये जो बर्ड्स हैं या आइज हैं ये न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं. सिमिलरली इन केस ऑफ अनियन एंड जिंजर जो हैं ये भी स्टेम है, इंक्लूडिंग गार्लिक. गार्लिक इज ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. तो ये क्या है, ये भी स्टेम की मॉडिफिकेशन है. ये भी नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.